اقبال جنجوا میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اقبال جنجوا معروف صحافی ہیں باغ سے، بڑی اچھی ان کی اپنے ولاگز بھی ہوتے ہیں، اور صحافت میں بھی ایک بڑا نام ہے۔ سابق وہ پریس کلب کے وہ سیکرٹری فائنینس بھی رہ چکے ہیں، میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام زبیر صاحب۔ عبادات میں لوگ مصروف ہیں، لیکن دل جو ہے وہ کوئی بڑا ڈوبا ڈوبا سا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری ایک بڑی قابل بچی فریہ افراہیم، جو جس کی لاہور میں ایک بڑے حادثاتی ایک موت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یقیناً ہر شخص جو ہے وہ بڑا اس وقت پریشان ہے۔ یہ جو ایک پہلے خبر چلی وہاں پہ جی خودکشی ہو گئی ہے، کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں یا اٹھائے جائیں گے؟ بہت شکریہ زبیر صاحب۔ سب سے پہلے تو اس افسوسناک واقعے کی جتنی بھی جنہیں کی مذمت کی جائے، یا جتنا دکھ ہوا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ پیرنٹس جو آج کے دور میں اپنے بچوں کو اس طرح سے پڑھاتے ہیں، اپنے سے دور رکھتے ہیں، مستقبل کی امید رکھتے ہیں، اور آخری اس وقت یہ حادثہ، یہ سانحہ، یہ واقعہ پیش ہو جائے کہ آخری سال خیریت سے وہ اس نے ٹینور پورا کر دیا۔ اس میں ایف ایم کے اس پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو افسوس بھی کرتا ہوں، اور پورے آزاد کشمیر کی جو ہماری حکومت ہے اس سے بھی مطالبہ ہے، اور جو لوکل ہمارے منسٹر ہیں ان سے بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے فری اینڈ فیئر اس کی تحقیقات کروائی جائے، فرانزک کروایا جائے، سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ ساری چیزیں سامنے لائی جائیں۔ اور یہ جو کمیٹی والی بات ہے زبیر صاحب، اس سے تو میں اتنا زیادہ مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اور اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یا اس کو وہ کرنے کے لیے اس طرح سے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، تحقیقاتی ٹیمیں بنائی جاتی ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ضیاء قمر صاحب ہوں، مشتاق ناز صاحب ہوں، یا ہمارے جو میر اکبر صاحب ہیں، یہ دیگر جو بھی کشمیر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے منسٹر یا مننے ہیں یا گورنمنٹ ہے، ایون کے راٹھور صاحب ہیں، انہیں ڈائریکٹ یہ مطالبہ کرنا چاہیے وفاق سے کہ جی ہماری بچی ہے، جو بھی اس کا تھا، وہ ڈپریشن میں تھی، وہ سچ تھا، وہ جھوٹ تھا، کسی قسم کا کوئی ہاتھ تھا، وہ سارے کا سارا سامنے لائے پوری کشمیری جو قوم ہے ان کے سامنے، تاکہ یہ چیز واضح رہے کہ یہ حادثات کیوں ہوئے، کس طرح سے ہوئے۔ یہ ڈیلے کرتے رہیں گے، یہ چھپاتے رہیں گے تو یہ غم و غصہ بھی رہے گا اور یہ افسوس بھی رہے گا۔ نہیں سمجھ سکتے یہ دکھ ان پیرنٹس کا، یا وہ جو بہن بھائی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، کیونکہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آج کا یہ دور گزر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچی وہاں تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہوگی، وہ ڈیلی اپنے پیرنٹس سے بات کرتی رہی ہوگی۔ یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے کہ اس نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ میرے پیپر بڑے اچھے ہوئے، وہ ٹاپر بھی بالکل آپ نے جیسے کہا صحیح کہا کہ وہ رہی ہے۔ آخری سیمسٹر میں ایسا کیا ہوا کہ اس نے وہ اس جو آخری قدم ہے وہ اٹھانے پہ مجبور ہوئی؟ تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور واقعہ ہوگا، کوئی ہاتھ ہوگا، چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر کوئی ایسی فضا ہے وہ ہو، یا ادر کوئی اسے پریشر ہوا ہو، یا کسی قسم کا کوئی اس طرح سے بات ہوئی ہوگی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ چونکہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہماری جو حکومت کے آپ نے نام گنوائے ہیں، مجھے ضیاء القمر صاحب کا کوئی ایک بیان دیکھا تھا، انہوں نے اپنے چند لوگوں کو کہا جی کہ آپ فوراً وہاں پہ جائیں، کیونکہ وہ یہاں کے ہوم منسٹر ہیں، تو وہ لوگ تو وہاں پہ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے یا کسی اور منسٹر کی طرف سے ابھی تک کوئی بڑا بیان سامنے نہیں آیا جس میں انہوں نے وفاق سے یہ بات کی ہو، یا انہوں نے کوئی پریس کانفرنس بلائی ہو کہ بھائی ہماری ایک بچی ضائع ہو گئی ہے۔ تو اس پہ حیران بھی ہوں کہ اتنے ٹائم تک تو میرے خیال میں ہمارے جو کابینہ ہے اس کی طرف سے ایک بڑا اچھا بیان سامنے آنا چاہیے تھا۔ بالکل یہی بات، بالکل یہ دیکھیں نا، یہ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ جو ہمارے لوکل منسٹر ہیں انہوں نے اس حد تک کیا، ان کا رائٹ بھی بنتا تھا، اور دکھ میں شامل ہوتے وہ وہاں گئے، وہ ساری بات میں نے بھی ضیاء قمر صاحب کا بیان پڑھا تھا، علی سیاح صاحب بھی وہاں پہ تھے، کل انہوں نے وہاں جا کر بھی بات کی، وہ ساری چیز اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، یہ جو کشمیر کی عوام ہے، جو ہم لوگ ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا مطالبہ بھی ہے کہ اس کو
उस तरह से कमेटी बनाकर, लंबा नहीं, कुछ शॉर्टकट से बिल्कुल नुमाइंदे मौजूद हों और जो वहाँ की यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उससे रब्ता करें। आज के दौर में जुबैर साहब टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ पे मिनटों के हिसाब से फोरेंसिक होती है, कॉलें रिकॉर्ड होती हैं, हर एक के पास मोबाइल है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तमाम एक्टिविटीज नोट होती हैं। मैं थोड़ा सा ये इसलिए इस सेंस में बात करता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी इस चीज को छुपाना चाह रही है तो नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो भी असल कहानी है वो सामने आए, चाहे वो गलती बच्ची की तरफ से है, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से है, या कोई थर्ड ऐसा ग्रुप यूनिवर्सिटी के अंदर जो तंजीमें बनी होती हैं, कोई उसे प्रेशर दे रहा था, कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था, कोई उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। जो भी सूरत हाल है वो बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि हमारे लोकल जो मिनिस्टर हैं ये वाज़ेह तौर पे ये कहें यूनिवर्सिटी को, जो भी इनका चयन बनता है वफाक के थ्रू कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, जिस तरह से भी हैं। और ये बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुश्ताक नवाज साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनके साथ हैं, और उनसे ये मुतालबा करें कि हमें इसकी जो हकीकत रिपोर्ट है वो सामने लाई जाए। और अगर हम इसको इसी तरह से टाइम गेन करते रहे, इसी तरह से इंतजार करते रहे, तो आपको पता है कि वक्त के साथ साथ फिर ये चीजें ये भूल जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद कौन पूछता है। और जुबैर साहब जो असल हकीकत तक पहुंचने का जो फायदा है वो ये है, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं या इंटरनल फैक्टर हैं, कि अगर एक चीज हकीकत तहकीक करके जो सच्ची बात सामने आएगी उससे ये होगा कि हजारों की तादाद में ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पंजाब मतलब के अंदर हो गया, सिंध के अंदर हो गया, या पाकिस्तान के दीगर शहरों के या दूर दराज इलाकों में जाकर वो वहाँ पे अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। तो पेरेंट्स अलर्ट होंगे, वो अपने बच्चों को गाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उन पे अवेयर होंगे, तो ताकि एक बच्ची ने अगर किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर की वजह से इस तरह से अपनी जिंदगी अल्लाह के सुपुर्द कर दी, तो जो बाकी पेरेंट्स है वो इस दुख से ना गुजर सके, वो इस तरह का सामना उनके साथ ना हो। तो ये होना चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी के पंजाब की इस वक्त जो वज़ीर आला हैं वो BA खातून है, और मरीम नवाज साहबा बिल्कुल हकीकत है। अगर आप दूसरी तरह से देखें, अतीक साहब के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे फैसल राठौर साहब के अच्छे हैं, मुश्ताक नवाज साहब का मैंने पहले भी जिक्र किया, आपने बताया कि उनका तो डायरेक्ट पंजाब के अंदर बहुत अच्छे मजबूत किस्म के मरासिम हैं। इस तरह से बाकी भी जो हमारे सरदार तनवीर साहब है उनके हैं। तो ऐसा इतने तगड़े ताल्लुकात और इतने तगड़े वजीर या ये जो मिनिस्टर होने के बावजूद अगर ये इस मामले को अगर इन्हें दबाने की कोशिश की या कहीं वक्त को जाया करने की कोशिश की, तो मैं ये कहूँगा कि फिर आने वाले जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो उनके लिए भी एक खतरा रहेगा, और फिर वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे। उनके बच्चे वहाँ पे हैं, बच्चियाँ वहाँ पे हैं, और खास करके बच्चियों का मामला तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें तो चाहे वो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया हो या गवर्नमेंट हो, उन्हें तो बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर केयर करनी चाहिए। और इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है कि एक बच्ची मैच्योर है, वो स्टूडेंट है, डॉक्टरेट कर रही है, और वो वहां से छलांग लगा ले यूनिवर्सिटी की किसी छत से और वो खुदकुशी कर जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। इसके पीछे तो ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि सेंसिबल मैच्योर बच्चा या बच्ची इस हद तक अपनी जिंदगी को वो ज़ाया करे। उसके पीछे इतने उस लेवल के, उस इंतहाई लेवल के इकदाम या कहीं कोई प्रेशर हुआ होगा कि उसने ये कदम उठाया, वो क्या था, हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या था। ये भी तो नहीं अभी कि उसने खुद छलांग लगाई है या किसी ने उसको फेंका है वहां से, धक्का दिया है। क्लोज क्लास फेलो भी हुई होंगी, उसकी रूममेट भी होंगी, उसकी बाकी जो कोलीग्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी साथ होंगे, उसने शेयर किया होगा। कुछ साफी वहाँ पे गए हैं, और कि वहाँ पे तो स्टूडेंट्स पे पाबंदी लगी हुई है कि वो किसी को कुछ ना बताएं। यही तो वो चीज जुबैर साहब, देखें क्यों पाबंदी लगी है। क्या बात हुई है कि कुछ चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस तरह से जानबूझकर ये, जिसमें बहुत से ऐसे हमने तारीख के अंदर हादसा पाकिस्तान में देखे हैं कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो आगे बढ़ने वाला होता है, जो लायक होता है, ज़हीन होता है, उसके रास्ते में कहीं ना कहीं से रुकावट एक्सटर्नल या इंटरनल डाल दी जाती है, उसको इस तरह से मजबूर कर दिया जाता है, उसको खुफिया तौर पे कुछ भी हादसा करके तो कुछ भी नाम दे दिया जाता है। ये तो अगर बात करने पे आए खुल के, तो हमारे पास 101 किस्म की ऐसी दलीलें भी मौजूद हैं, शक शुबात भी मौजूद हैं। लेकिन हम इस वक्त यही मुतालबा कर रहे हैं अपने लोकल मिनिस्टर से भी, और जो
पंजाब की इंतजामिया उससे भी, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया उससे भी, कि हमें इसकी तहकीकात बताएं कि क्या है, शफाफ की जाए। इसके अंदर ये कमेटियां बनाकर तो उधर से 4 बंदे उधर से बैठ गए, 4 इधर से बैठ गए, 2 बंदे इस्लामाबाद के आगे, 12 बंदों की एक कमेटी बन गई, उससे पूछा, उसने उससे पूछा, उसने उससे पूछा, 6 महीने गुजर गए और उसके बाद बस ठीक है जी चलें जी, बात गुजर गई। हाँ, और अगर इसके पीछे कोई अगर असर रसूख वाले कोई शख्सियत हुई, कोई बड़ी शख्सियत हुई, तो फिर जाहिर है फिर किसने कहना है कि ये क्या वाकया क्या है, असल क्या वजह है? क्योंकि जाहिर सी बात है इनके पास भी उस तरह से हकीकी मालूमात नहीं है। जब यूनिवर्सिटी के अंदर तहकीकात पे पाबंदी है, जब कोई बात बाहर नहीं आ रही, तो फिर तजिए ही किए जाएंगे, कुछ तफसीर किए जाएंगे, कुछ अपने तौर पे गस की जाएगी बात, तो वो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उस सस्पेंस में पढ़ने से बेहतर ये है कि हमें ये चीज सामने लाई जाए और कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, पाकिस्तान के किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, जिस तरह से हॉस्टलों के अंदर जो पोजीशन चल रही है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनको अगर वहाँ पे इस आज के नामसायद हालात में रह कर अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को इस हद तक तालीम दिलवाते हैं तो उनका भी ख्याल रखा जाए और जितना मुमकिन हो सकता है। मैं तो पंजाब की जो मिनिस्टर है, ये जो सीएम है, मैं क्या कहूँ उससे कि वो अपने तौर पे जरा सी भी अगर किसी को कांटा चुभ जाए तो वो गले लगा लगा कर रोती हैं कि ये जुल्म हो गया, ज्यादती होगी, ऐसे हो गया। तो क्या हमारी बच्चियां नहीं है? सर बिल्कुल यही एक अफसोस हो रहा है कि इस पे अभी तक कोई इस लेवल का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, बयान सामने नहीं आ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर जो कश्मीर बेस्ड साफी हैं उनको वहाँ पे आवाज उठानी चाहिए, वहाँ पे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, वहाँ खुद मिनिस्टर को बुलाकर वहाँ पर इस बात को उठाना चाहिए। वहाँ की बात ज्यादा वजनदार है बनिस्बत यहाँ के। आपकी आवाज की बंद हो गई है, सॉरी। अच्छा तो ये बात है। दूसरा सामने आप आज सुबह आपने देखा होगा कि वो हवेलिया से ताल्लुक रखने वाले कोयटा से एक नौजवान जो इफ्तारी से कुछ टाइम पहले उसे गुमनाम सी कॉल आती है, वो बाहर निकलता है और जब इफ्तारी के टाइम नहीं पहुंच सकता, हाँ। और फिर घंटे के बाद जब उसके वो साथ तलाश करते हैं तो उसकी डेड बॉडी मिली, खूबसूरत नौजवान। ये बाकी हमारे मिनिस्टरों को चलो बाकी जो ग्राउंड तरक्की है उसको तो साथ जारी रखे ना रखे, लेकिन ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ नौजवानों के अंदर, खवातीन के अंदर, बच्चों के अंदर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर मौजूद है, इसको किसी तरह से मतलब इंश्योर करें कि ये नहीं होगा। कौन है इनके पीछे, किस तरह से ये नौजवान कत्ल हो जाते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर खामोशी से सारा कुछ पूछें तो जी तहकीकात जारी हैं, अभी बात नहीं कर सकते, अभी मामला इधर फंसा हुआ है, मामला उधर फंसा हुआ है। हमारे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम अपने बच्चों को फिर स्टडी के लिए कहीं बाहर नहीं भेज पाएंगे। हम जितने भी आम आदमी हैं, हम अपने बच्चों को क्यों बेफिक्र होकर बाहर निकालते हैं? इसलिए कि रियासत पे हमें भरोसा होता है कि रियासत माँ की जैसी होती है। रियासत यूनिवर्सिटियां उनके इदारे होते हैं, उनके अंदर उनका इन्फ्लुएंस होता है और वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे हमारे बच्चों को। अगर इसी तरह से बेलगाम होते रहे और खुदकुशियों का नाम देकर कुछ भी इल्जाम लगा दें, या बच्चा हो या बच्ची हो उसके ऊपर कोई भी और इल्जाम लगा दे, ये इस धंधे में था, ये उस धंधे में थी, ये इस तरह से था, ये तो बात नहीं बनती ना। हम ये चाह रहे हैं कि कुछ भी है, रियासत का काम है कि वो हक़ाइक़ को सामने लेकर आए, ताकि अगर वो सच है तो जो बाकी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दे सके, और अगर नहीं है तो वो अलर्ट रहें, वो उनकी किसी न किसी तरह से उनके साथ जुड़े रहें, ताकि वो इस तरह के इकदाम इस तरह से जो आखिरी स्टेज के जो कदम है वो ना उठा सके। तो ये तो नहीं है कि आप इल्जाम लगाकर खुदकुशी करते हैं। आखिर खुदकुशी क्यों की उसने? कोई तो इसके पीछे बात होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। बस एक परेशान कौन बात है। और एक चीज और भी आपसे कहूंगा कि अपना जो हमारा प्लेटफॉर्म है FM 105 का फॉलोअप आप जरूर रखिएगा, वीकली रख लें, 10 दिन बाद रख लें, जब तक ये बिल्कुल बंद नहीं हो जाता केस। देखते हैं कि कहाँ तक ये बात जाती है, हमारे मिनिस्टर क्या करते हैं, हमारी हुकूमत कहाँ तक जाती है, क्या इसके पीछे तहकीकात होती हैं, फाइनल वालिदैन को रिजल्ट क्या दिया जाता है, किस तरह से उनको मुतमईन किया जाता है, ताकि हमें ऐसा नहीं है कि हम एक आध दफा बात करके तो बस उसके बाद छोड़ दें। या नहीं, इंशाल्लाह इसको डेली बेसिस पे जरूर होना चाहिए। डेली बेसिस पे इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने इस रात के इस पैर में
آپ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے اور بڑی خوبصورت آپ نے تجزیہ بھی پیش کیا ہے. اللہ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ.